Hello everyone. So in this video, I'm going to be discussing Geeks for Geeks weekly contest 99 third problem. I think the solution that was provided during the time of discussion and even in this solution itself, uh, this is very tricky for someone to understand. It contains a lot of lambda functions and a lot of comparators, etc. So I don't. For beginners, I think this is very uneasy and mostly they won't be able to understand it. So I've come up with a new approach for solving this problem. I hope most of you have read this and after that are coming to this problem, obviously, because you weren't able to understand. So, but once again, let's see the problem. Okay, so you are a student named Geek and you love to solve problems related to arrays. One day, your teacher gave you a challenge asking that you need to make the array good. Now, the array is good if the frequency of each element in the array is less than or equal to k. However, an array may or may not be good to begin with, obviously. Fortunately, the teacher had given him an extra lifeline. He was allowed to perform in one operation on error. He could choose any subarray of error and remove it. Geek put on his thinking cap and began to work on this problem. Since Geek is busy these days, so he asked for your help. So your task is to return the minimum length of subarray that Geek has to remove in order to make error good. If no subarray needs to remove, then you have to return 0. Okay. So let me almost open MS Paint. So let's see you're given the array 3, 1, 3, 6. Now you want to make such a subarray that k is 1. Okay, so at max you can take each element only once. Okay, now let's see you start from 3, then you can take 3, then you move to 1, you can take 1 as well. Now if you move to 3, you cannot take this. Okay, so now you will have two options. Since you have to remove a subarray, you can remove all this part and move ahead. Or what you could do is maybe move this pointer over here and take 1, take 3, take 6. So the subarray length which you had to remove was just 1 instead of 2. Okay, now let's see another example which is 6 and 1, 2, 3, 3 to 1. Okay, you are given a subarray which is 1, 2, 3 and 3, 2 and 1. Now you can take this, take this, take this. Now if you move forward, you cannot take 3 because it would make the frequency greater than 3. So that and you cannot take 2 as well and you cannot take 1 as well. So now the question is that I know how to what the question is saying, but how do I solve it? So what you have to do now is uh, you try to explain it to you. Suppose like you are given an array which is 1, 2, 3, 8, 8, 9, 4 and 6. Let's take 7 as well. And let's take an 8 over here. Okay. And k is just 1. Okay. So this question can be solved using binary search, lower bound and upper bound, but I had solved it using a map and two pointers. So basically, a map is for creating a count of the variables that I've taken so far. So first, what I would do is, initially I would check that I would traverse to the array till the frequency of the element that I'm taking does not become greater than k. Let me explain to you what I'm saying. For example, I would move from 1 till 8. I can take 1, now I will move forward. I can take 2, I'll move forward. I can take 3, I'll move forward. 8, I'll move forward. Now I cannot take 8 once again. So this is the point where I will break the loop. Okay. Now this becomes my starting point. Now there's all another pointer at end as well, which is this. Now I will see the frequency of elements from right hand side. The frequency of 7 is 0, thus I can take this. Frequency of 6 is 0, thus I can take this. Frequency of 8. Now this is the crucial point. Frequency of 8 is 1. If I take this, it becomes greater than k. So thus I cannot take this. Now maybe I could remove this length. Okay, so I will store this in my minimum length which has to be removed. But what I will do now is I will decrease this pointer and shift it here.
and now I will move my j. Now I can take 8 and take 4, take 9, and yeah, so basically I can take all of these. Can I take 8 again? No, I cannot take 8 again. Now I will see the previous pointer of 8. Like मतलब मैं समझाने चाह रहा हूँ कि मान लो कि तुम 8 पर आए हो अब, तो ऐसा हो सकता है कि 8 लेफ्ट में आया हो, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि मैं राइट से चल रहा हूँ ना जे से। तो अब मैं देखूंगा कि क्या ऐसा कोई पॉइंट मुझे मिलेगा जिसमें कि जिससे कि 8 की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। अगर ऐसा कोई पॉइंट मुझे लेफ्ट में नहीं मिलता है तो मैं उस लूप को ब्रेक कर दूंगा, और क्योंकि मेरे पास मिनिमम इंडेक्स पहले मैंने स्टोर कर लिया है जो कि ये है मिनिमम लेंथ, तो और मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। ठीक है। अब मैं एक बार आपको इसे इसका कोड दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ मैंने एक आई पॉइंटर बना लिया है। इस आई को मैं स्टार्ट नाम दे देता हूँ कि ताकि थोड़ी क्लैरिटी बढ़े। ठीक है, और इसको हर जगह स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया? जहाँ तक मेरी वैल्यू वो सेटिस्फाई हो रहा है कि मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट जो भी मैं ले रहा हूँ वो लेस देन के हो। ठीक है ना। और मैंने वहाँ तक बढ़ाया, फिर जैसे ही वो ख़त्म हो मैंने लूप को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट दैट आई एम टेकिंग सो फार इज लेस देन के। इक्वल टू के नहीं, क्योंकि मैं पहले चेक कर रहा हूँ उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही ये वैल्यू ख़त्म हुई मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि आई हमारे लास्ट तक पहुँच गया। अब अगर आई मेरे लास्ट तक पहुँच गया तो मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं जिसमें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा हो रही हो। तो इसका मतलब कि हमें कोई पार्ट रिमूव ही नहीं करना है। अब हो सकता है कि मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया। लास्ट इंडेक्स का मतलब कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, तो बस उसको रिमूव कर दो। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अच्छा, अब अगर मान लो कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो मतलब यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। अब इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, इस 8 को लेने से, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि इसको, अब मैं इतना पार्ट रिमूव कर सकता हूँ ना एरे का, ताकि फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी ना हो। मतलब इससे कम लेना है बट इतना पार्ट भी रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इतना पार्ट स्टोर करा लिया मैंने एक मिनी नाम के वेरिएबल में, कि इतना इसको कमेंट में लिख देता हूँ मैं कि दिस इज द इनिशियल लेंथ ऑफ सब एरे दैट आई कैन रिमूव। ओके। अब मैं जे को बढ़ाऊंगा। जे को मैंने पहले फिक्स कर दिया है n-1 पे, लास्ट इंडेक्स पे। अब ये i माइनस माइनस मैंने पता है क्यों किया है? क्योंकि अगर मैं इस 8 पर आ गया हूँ, मतलब कि जहाँ मेरा कंडीशन ब्रेक हुई है, मतलब कंडीशन कहाँ ब्रेक हुई है? इस 8 पे, है ना। तो अब इस 8 को तो मैं लेना नहीं, तो मैं पीछे जाऊँगा, इस 8 पे जाऊँगा। ओके। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि ये तो लूप की कंडीशंस है, बस ऐसा ना हो कि हमारा आई इंडेक्स 0 से कम हो जाए या जे इंडेक्स 0 से कम हो जाए, तो फिर वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एक्सेप्शन दे देगा। अब मैंने फिर देखा कि क्या ऐसा है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है लास्ट एलिमेंट की, क्या वो के से कम है, तो मैं इसको बढ़ा दिया। और क्योंकि मैंने जे को कम किया है, इसका मतलब कि अब मेरी जो मिनिमम स्क्वायर की लेंथ है वो भी कम हो गई। मतलब पहले जे 7 पे था, अब वो जे 6 पर आ गया, तो लेंथ कम हो गई ना। तो मैंने वहीं पे लेंथ चेंज कर दी। अब मान लो कि मैं राइट से जा रहा हूँ और 8 आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा कि मैं फिर से जो मेरा आई है उसको माइनस माइनस करूँगा और जे को भी माइनस माइनस करूँगा, और ये मैं तब तक करता रहूँगा जब तक कि मेरे को एक ऐसा आई नहीं मिल जाता जो कि 8 के बराबर हो। ठीक है। ये बस वही कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे ही मेरे को वो आई मिल गया जो कि जिससे कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अगर आई लेस देन 0 हुआ तो मैं ब्रेक कर दूंगा। ठीक है। वरना मैं अभी अब क्या हो रहा है कि अब मैं मतलब इस एट पे पहुंच गया हूँ, तो अब मैं इसको और पीछे ले जा रहा हूँ। मतलब कि जैसे अब मैं इसको जे को और पीछे ले जा रहा हूँ, और पीछे और पीछे। अब मैं इस एट पर आ गया हूँ। तो अब मैं देखूंगा कि ऐसा कोई एरे
मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है लेफ्ट में जो कि 8 के बराबर, अगर तो ऐसा एलिमेंट मिल जाता मुझे, मतलब कि मान लो यहाँ मिल जाता, तो तो इससे फ्रीक्वेंसी कम हो रही होती, तो मैं इस 8 पर चला जाता, ठीक है। एल्स में क्या करूँगा, और हमेशा मैं मिनी को चेंज करता रहूँगा। वैसे इसको कंडीशन को मैं हटा भी सकता हूँ, क्यों? क्योंकि आई और जे तो साथ साथ में माइनस माइनस हो रहे हैं ना, तो मतलब कि वो लेंथ तो ऑफ सब एरो तो फिक्स रहेगी, ठीक है। और लास्ट में एक और बार मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये मतलब कि ये पूरी सब एरे को मुझे ना रिमूव करना पड़े, इसलिए मैं जे को माइनस माइनस करता रहूँगा और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता रहूँगा, और फिर वही मिनी में स्टोर करता रहूँगा। जैसे ऐसी कंडीशन ब्रेक होगी जिससे कि ये खत्म हो रहा होगा। अभी आई तो मेरा खत्म हो चुका है, इसलिए और कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस रिटर्न भी नहीं कर दूंगा। होपफुली कंपाइल होता है। शायद मैं एक्सप्लेन ठीक तरह से ना कर पाया हूँ, बट ये कोड थोड़ा आसान लग रहा है मेरे को एटलीस्ट समझने में। फिर से वापस इसको वापस सूची इसको वापस से आई कर देता हूँ ताकि कंपाइल हो जाए। Please tell me in the comments if my explanation was clear. I will share the code as well if you guys need it. Let's see if this compiles. Hopefully it should. Why is this taking? Okay. Yeah. So this compiles. Thank you for watching.